Welcome to Kalam IS. This is News Simply Put, dated 17 December 2024, and let's get started. These are the topics which we'll discuss today, which is about the Uniform Civil Code and about South Korea's impeachment of Yoon. So these are the clippings that can help you locate better, and let's get started. So basically, there has been a debate on the UCC, and PM Modi ji has recalled a 1948 debate. So, what is the whole news? So, Prime Minister Modi has emphasized the importance of UCC, and he has recalled what basically Dr. B.R. Ambedkar ji and KM Munshi ji said during the debates that took place while the Constituent Assembly was active. So, at that time, also in November 1948, there was a debate if we should include this or not. And at that time, it was KM Munshi who said that yes, the debate that there should be an inclusion because it was important to maintain the unity of the country, right? And also that India's modernizing, so we have to include that. Also he was saying that K. Munshi was saying that this is not really tyrannical to the need of minorities. So he basically wanted to emphasize that we should restrict the need of religion to certain spheres, and in the rest of the spheres of life there should be unity. So this is what K. Munshi said. And similarly, B.R. Ambedkar also said that there is a need to reconcile legislation with community sentiments. So these were the things that were said before, and in the same line, even PM Modi ji has taken the reference. So this is the whole bit. Let's see what the article says. So UCC aims to replace religion-based personal laws with the common set. And it's basically for three purposes: basic marriage, divorce, and inheritance. And yeah, again, like I said, it has been a historical context, and PM Modi ji has also given reference to it. And the debate has also been taken from KM Munshi's view, right? So 1948 में भी एक डिबेट हुई थी, जैसे मैं बता रही थी आपको, राइट, अबाउट उस वक्त ये आर्टिकल जो 44 अभी है वो आर्टिकल 35 की तरह डिबेट हो रहा था कि क्या हमें उसे इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एंड आज की डेट में तो हमें पता ही है कि दिस इज हाउ इट इज़ बीन रेड, राइट. सो गोइंग फॉरवर्ड, there was, however, certain concerns that were being raised by the other members. And what were the concerns? So कुछ कुछ मेंबर्स थे, जैसे कि आप देख रहे हैं मोहम्मद इस्माइल साहिब. उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दैट विल डिस्टर्ब द हार्मनी. नाउ हाउ विल दैट डिस्टर्ब द हार्मनी? बिकॉज मे बी दैट कुछ लोग चाह रहे होंगे कि कुछ तरीके से इंडिपेंडेंस रहे ओवर हाउ द मैरिज शुड बी गवर्न, हाउ डिवोर्स शुड बी गवर्न. और ये जो स्पेसिफिक ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स है किसी पर्टिकुलर कल्चर के, उसको वैसे फॉलो करना चाहिए. एंड ऑल्सो नसीरुद्दीन अहमद एक्सप्रेस कंसर्न्स दैट यूसीसी माइट इग्नोर द क्रूशियस religious laws. So that is how some concerns were even raised at that time. Yet, K.M. Munshi supported that no, this is not going to be the way, and he addressed the criticisms of UCC being very tyrannical, said that personal law in advanced countries are not sacrosanct. And he said that because he was also concerned with the equality and women rights. तो अगर यूसीसी अगर एक रूल निकालता है कि मैरिज के केवल ये लॉज है, डिवोर्स के केवल ये लॉज है, तो उस तरीके से क्या होगा, उस तरीके से इक्वालिटी आएगी, राइट. एंड विद इन पर्सनल लॉज ऑल्सो विमेन राइट्स जो कभी कभार कुछ जगह पे सही से प्रोटेक्ट नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे भी सबको उतनी आवाज़ मिलेगी. सिमिलरली बी आर अम्बेडकर का भी यही व्यू था कि पर्सनल लॉज इम्यूटेबिलिटी के बारे में, एंड स्टेट का काफ़ी रोल है ही सोशल रिफॉर्म में. सो इट्स मोस्टली द सेम थिंग्स, the same articles and the same points are basically repeated, like I've told you in the beginning. Ambedkar ji highlighted the need for state power to legislate on personal laws while respecting community sentiments. So that is how the middle ground was found. So it was said that yeah, we do understand that there are differences between communities, but yes, there is a need for a middle ground, and therefore we will find the laws which respect the community sentiments, and therefore some reforms should come. So this is the article. Next is about Yoon's impeachment. Before we go into this, let's see a little bit of background. So he used to be the prime minister or the president of the place called South Korea. And why is this significant? Because in a world where democracy is being strangled in the name of weak media or strong leaders, South Korea emerges as a place where democracy was protected, and it was on the basis of opposition, it was on the basis of media, and it was on the basis of the common people who came down and made sure that they are holding the government accountable for every action they take.
Generally, we say that it is only during an election that the accountability of the government is established. However, in South Korea, the whole incident about the impeachment reveals the fact that public is active even even when there's not an election. So it is an all-round accountability. And now, why is that the case? So basically, this Yoon, this guy, he what he did that one late night, he comes and he says that we'll put a martial law. So martial law is, if you have read the polity fundamental rights chapter, you will see that this is imposed when there is a military rule in a very adverse situation, and the civilian government and the civilian rights basically they are suspended. So this is done in extreme adverse situations. However, he just imposed military rule, एंड क्या एक्सक्यूज़ दिया उन्होंने जनता को? उन्होंने बोला ये करने का ज़रूरी इसलिए है बिकॉज कुछ जो नॉर्थ कोरिया प्रो फोर्सेस हैं वो आ रहे हैं साउथ कोरिया में, तो हमें उन सब चीज़ों को ठीक करना है, उनको हटाना है और हमें साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है. सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच ही वॉज सेइंग, एंड इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला कि हमें मार्शल लॉ लेकर आना चाहिए. सो ये जो भी उन्होंने बोला, दिस डिड नॉट लुक एट ऑल जस्टिफाइड फॉर द फैक्ट दैट मार्शल लॉ आप केवल इस चीज़ के लिए इम्पोज कर रहे हो, तो दिस डिड नॉट लुक जस्टिफाइड. ऑल्सो ही वॉज इन लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी सिंस द टाइम ही केम. सो वेन ही केम ही जस्ट वन बाय 0.7% ऑफ द वोट्स. सो नाउ उसके आने के बाद भी आगे जाके ये देखा जा रहा था कि इनकी रेपुटेशन और इनकी इमेज ख़राब हो रही थी, एंड राउंड एक बार के बाद इन लोग की कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी आ रही थी बार बार एक के बाद एक. So now he thought that maybe putting a martial law would be a way, and to get things done and to put things in order. But ये जो उन्होंने सोचा ये थोड़ा सा उल्टा पड़ गया. मार्शल लॉ उन्होंने रात को इम्पोज किया, सोचा सुबह तक कोई आएगा नहीं पार्लियामेंट में तो अपने आप पास हो जाएगा. लेकिन जब इन्होंने मार्शल लॉ रात में इम्पोज किया तो जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने उसी वक्त थोड़े आधे घंटे में या उसके आसपास के टाइम पे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी और पूरी पब्लिक को बोला कि आप प्लीज़ पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर आइए और आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए. दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग दैट यून हैज़ डन एंड वी नीड टू ब्रिंग इट डाउन राइट नाउ. अगर हम सुबह तक कुछ नहीं करते तो मार्शल लॉ पूरी कंट्री में लग जाएगा एंड सिविलियन राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे. तो इस चक्कर में नाउ कैन यू बिलीव कि पूरी जनता रात में आधी रात में आई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर. उन्होंने बहुत देर तक नारेबाजी करी, एंड जो मिलिटेंट्स भी थे यहाँ पर जो बेसिकली शायद यहाँ रखे गए थे टू प्रोटेक्ट एंड टू इंश्योर कि कोई दंगाबाजी ना होए, वो इनफैक्ट तब दब गए थे. एंड अल्टीमेटली जो ऑपोजिशन लीडर्स थे वो पार्लियामेंट के अंदर आए, उन्होंने वोट किया और ये मार्शल लॉ को सस्पेंड करवाया. तो मार्शल लॉ तो कभी लग नहीं पाया. एंड डू यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल ओवर हियर? हैड द पीपल नॉट कम, इतनी नारेबाजी नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होता, तो शायद ये मार्शल लॉ लग जाता, क्योंकि ऑपोजिशन के लीडर्स आ नहीं पाते और ये लॉ को प्रिवेंट नहीं करवा पाते. सो इन दैट सेंस मैं आपको बहुत रफ वर्ड्स में पूरे एपिसोड बता दिया है क्या हो गया है, एंड बहुत शॉर्ट समराइज में मैं आपको चीज़ें समझाई हैं सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया व्हाट्स हैपनिंग. तो अब ये पहले तो मार्शल लॉ उन्होंने लगवाया और अब जो कि बाकी लोगों ने हटवा दिया ऑपोजिशन लीडर्स ने, और अब बात ये चली है कि इनको इम्पीच ही करना चाहिए बिकॉज ऑफ द एक्शन दैट ही बीन डूइंग सिंस द टाइम ही बीन इलेक्टेड. ही इज इनटू कंट्रोवर्सी एंड नाउ अब इन्होंने मार्शल लॉ भी लगवा दिया है. सो अब लोग कह रहे हैं कि इन्हें इम्पीच ही करना चाहिए. So this is what the news is, that the impeachment motion is come against the president, and this was because उन्होंने martial law declare किया था जो कि overturn हो गया था within few hours. Constitutional court decision है ये, तो constitutional court decide करेगा कि कैसा होना चाहिए और 6 महीने में सब कुछ decide हो जाएगा. 9 judges की bench है. This is the detail which is not expected to know. However, the point is that he will be suspended and अब कोई और acting president आएगा, right? Now the point is to see what will happen, right? तो पब्लिक क्या सोचती है इस चीज़ के बारे में? तो पब्लिक तो डेफिनेटली चाह रही है, 70% लोग चाह रहे हैं कि यस इम्पीचमेंट करना चाहिए. जिस तरीके से मार्शल लॉ को दबाने के लिए लोग सड़क पर आए थे, उसी वक्त काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया था लोगों की सेंटिमेंट को देखकर कि यस द पीपल आर वेरी एंग्री, एंड ऑल्सो
there is a strong opposition, for Yoon's administration. So ये तो public sentiment is obviously in this favor कि impeachment होना ही चाहिए. लेकिन इसके implications क्या होंगे? तो general election को होना ही पड़ेगा within 2 months and conflicts between the ruling and opposition parties are likely to continue, obviously. तो इससे बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्शन का फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है तो वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है. तो इस केस में सब लोग जो लीडर्स हैं वो अपनी लॉन्जिटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और पब्लिक के वेलफेयर और स्टेबिलिटी और वेलफेयर की आगे बढ़ने के लिए कम सोचते हैं. सो इन दैट सेंस गवर्नेंस ओवरऑल इफेक्ट हो जाता है, राइट. एंड इसलिए वही कह रहे हैं पोटेंशियल फॉर द गवर्नमेंट डिसफंक्शन. सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन, राइट, एंड टेंशन आर गोइंग टू एक्सकेलेट. सो दिस इज बेसिकली द थिंग. एंड ऑपोजिशन लीडर्स के बारे में थोड़ी सी बात की गई है यहाँ पे. एंड कैसे कैसे लीड के जो प्रायर कन्विक्शन है दैट माइट अफेक्ट हिज एलिजिबिलिटी टू सर्व इज अफेक्टेड, बिकॉज जो दूसरे लीडर हैं वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ली जे मयूंग. So this is the whole thing. Now we did a question. So that came in 2022. So इसमें अब आप देख सकते हैं ऑप्शंस कैसे बने गए हैं. तो अगर एक भी ऑप्शन हमें समझ में आ जाए कोई गलत है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस कट के केवल एक ही जगह पे स्टेटमेंट टूट सकता है. तो हमारा क्या फोकस होना चाहिए, हमें कोई एक स्टेटमेंट ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट. गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग्स बाय वे ऑफ IIB's इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड. तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैन की बात कर रहा है. तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही लग रहा है. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, राइट. तो ये तो बहुत नॉर्मल डेफिनेशन लग रहा है. अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, मैं बता रही हूँ, अगर कॉमन सेंस को सॉल्व करना होता तो ये भी ऑब्वियस लग रहा है और ये भी ऑब्वियस लग रहा है. तो 1 और 2 तो सही है. तो यानी कि जहाँ 1 और 2 आएगा वो तो ऑब्वियसली सही होगा. तो इन दोनों में से करेक्ट होना चाहिए. अब थर्ड ऑप्शन के बारे में है, इंटरेस्ट एज वेल एज कैपिटल आर नॉट टैक्सेबल. अब ये तो आपको लगना चाहिए कि टैक्स कैसे नहीं होगा, वो भी दोनों चीज़ें. तो वैसे भी नॉट टैक्सेबल एक बहुत ही वैसा स्टेटमेंट माना जाता है जो ईजी टू प्ले अराउंड विथ होता है. तो या तो आपको पता हो तो ग्रेट, अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई भी चीज़ ईजी टू टर्न अराउंड है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो प्रॉबेबली ये गलत होगा. तो आप ये काट सकते हैं, आंसर ये आ जाएगा, राइट. एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर मेन्स टू डिस्कस द चैलेंजेस इंडिया कुड फेस इफ there is an implementation of the UCC. So this is it for today. Have a great day and let us know your feedback. That is it for today. Thank you.